Tap the bell icon on the YouTube app and never miss out on unique stories from 101 India. इसको मिला के आपके कुल कितने एनकाउंटर हो गए अभी तक? 36 तो हम लोग सोच रहे हैं कि अपडेट का आंकड़ा पास करेंगे, तक तो लगाई। कंफ्यूजन रहती है, कोई 108 बोलता है, कोई 6 बोलता है, कोई 4, पता नहीं। पापा आपको खुद को याद है कितने हो गए थे कि भूल गए? 16 तक तो याद है। मतलब आपके लिए वो एक गेम टाइप की बन चुकी है। हाँ तो विधि जी, मजा आ रहा है आपको? Gwalior, like most big Indian cities, is part feast and part assault on the senses. It might be jam-packed with visually stunning art and architecture, but it also happens to be India's most polluted city according to the World Health Organization. And if the pollution doesn't get you, the calorie-heavy street food sure will. Look at this. You can't be fit in this fucking city. You can't. I wish I was here just to soak in the sights and sounds. But what really brings me to Gwalior is its proximity to Chambal and its dacoit situation. Gwalior happens to be a gateway to the bandit country. It's so close to Chambal that a lot of ex-Dakus still prefer to hang out here. But I'm not here to dine with any of those Dakus. In fact, I'm going to do the exact opposite. I'm going to dine with somebody who's on the other side of the law. I'm going to meet a man who specializes in killing these Dakus. Ashok Singh Bhadoria, the cop with arguably the most number of hits on the Indian all-time encounter charts. With a whopping 116 kills, Mr. Bhadoria almost single-handedly wiped the Chambal Valley clean of its bandits in the last 3 decades. I was hoping his choice in food would be as impressive. Thankfully, he didn't disappoint. यहाँ की जो कुछ चीजें प्रसिद्ध हैं, जैसे कि बेड़ई है। बेड़ई क्या होती है वो? एक यहाँ की एक स्पेशलिस्ट है। ओके। जो डिश है जो वो आसपास कहीं नहीं पाई जाती। ओके। उसके साथ सब्जी भी दी जाती है, वो आपको खिलाते हैं। और दही जलेबी वो भी फेमस है। दही जलेबी सर? दही जलेबी के साथ दही। Till the time the snacks arrived, I decided to quiz Mr. Bhadoria about what exactly fuels the violence and gun culture that plagues Chambal. यहाँ क्या है, आदमी के घर में खाने को नहीं होगा, लेकिन बंदूक जरूर होगी। अपना सब बेच बाज के वो बंदूक का लाइसेंस लेगा वो। मतलब एक टशन की बात? एक टशन की बात हो, बंदूक टांग के घूमेगा। एक उसको लगता है कि हाँ, घर में भले ही वो सूखी रोटी खा के आए, लेकिन एक चावल लेके होंठ पे लगा लेगा और बताएगा कि अभी इसने चावल खा के आया है। ऐसा है यहाँ। चलो अच्छा है, आ गई बेड़ई, ले रखिए। ये बेड़ई और ये सब्जी बहुत बढ़िया जी है, एकदम खस्ता है ये। आप इसका टेस्ट देखें, जो ज़्यादा इच्छा है। चटनी भी शायद डाली है इसमें सब्जी में। जलेबी, दही जलेबी। अब इसका स्वाद लीजिए आप। अभी तो अपन ये खा रहे हैं, और जब जंगल में जाते थे हम लोग, कुछ बनी बनाई रोटी ले गए, 5-6 दिन हो गए, नहीं कोई लग पाया, तो देखे तो सूखे टुकड़े टुकड़े हो गए, तो वही गंदे पानी में, जो कीड़े वाला पानी, उसमें डुबो के, जैसे आप दही जलेबी डुबो के खा रहे हैं, ऐसे हमने वो रोटी उसमें पानी में डुबो के खाई। तो अब ये तो जैसे डकैत बन के डकैत जैसे ही वो करना पड़ता है। Drinking maggot-infested water and eating 6-day-old chapatis aren't exactly anyone's dream work conditions. But being a bandit hunter was the only thing that Mr. Bhadoria aspired to be since his college days, long before he joined the force in 1982. अदर जो थे वो भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, तो मुझे शौक था, मैं उनके साथ ही जाता था। नहीं ले जाते थे तो अभी मैं बीच में चला जाता था, गाड़ी में बैठ जाता था पीछे। जैसे बरसात के एक बार दिन थे, तो डैडी जा रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी चलूँगा, तो उन्होंने कहा नहीं, तो मैंने रेन कोट ऊपर तक डाल के और यहाँ गन बीच में लेके, और मैं भी साथ साथ चलना है। उन्होंने रेन कोट में देख नहीं पाए। Like father, like son.
It's not every day that you meet someone who's so passionate about hunting bandits. So when Mr. Bhadoria invited me over to his house for lunch, I obviously said yes. It was a great chance for me to see up close and personal the family life that comes with such a dangerous job. And if I was thinking that I'd be meeting a family suffering from stress and anxiety over Mr. Bhadoria's day job, well, his wife shot down my assumptions in cold blood. एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो ये बाद में बने, पहले मेरे पति बने और हम लोग चूँकि पुलिसी बैकग्राउंड से हैं, मेरे फादर भी पुलिस में थे, तो यूज्ड टू थे कि हाँ पुलिस फैमिली में शादी हो रही है, इट्स ओके. It was okay till 16th November 2002 when Mr. Bhadoria was shot in the hip during an encounter with the infamous Pappu Gurjar gang. It was a serious injury and I decided to ask him about the grisly details some other time. But I still wanted to know how the family coped with the aftermath. तो जैसे ही पता चला कि गोली लगी है, थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा कुछ सेकंड के लिए कि कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है, सारा कुछ घूम रहा है. कि फिर रात में 2 बजे फिर यहाँ सारा हॉस्पिटल में लोग आए तो स्टाफ देख के रोने लगा कि अरे ऐसा हो गया. तो हमने उन्हें डांटा कि गोली जब चलेगी तो किसी ना किसी के बेटे को तो लगेगी, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ. मतलब आपके लिए वो एक गेम टाइप की बन चुकी है कि आपका वो अगर और कोई एनकाउंटर करता था तो पापा थोड़े सो जाते. अरे यार अब तो कितने 100 के ऊपर निकल गए हम खुद ही. अब तो काउंट करना ही बंद कर दिया था कितने टाइम से. तो कितने हो गए, कंफ्यूजन रहती है, कोई 108 बोलता है, कोई 6 बोलता है, कोई 4, पता नहीं. पापा आपको खुद को याद है कितने हो गए कि भूल गए? 16 तक तो याद है. Mr. Bhadoria's passion for his work didn't really translate into smooth sailing for his career, which was checkered with meteoric highs and some abysmal lows. According to his family, the system had gloriously failed to appreciate his efforts and in fact, sometimes turned against him. तो आप बोल रहे थे सिस्टम की बात कर रहे थे, तो सिस्टम की अगर हम बात करें तो 16 टाइम्स इनको नॉमिनेट कर चुके हैं गैलेंट्री अवार्ड के लिए, आज तक एक भी नहीं मिला. प्रमोशन भी आउट ऑफ 10 अनाउंस करा था, वो अनाउंसमेंट ही बन के रह गई. वो तभी मिलेगा जब आपके फोटो पे माला टंग गई होगी मरणोपरांत, तो उसका क्या हम करेंगे, अचार डालें? ये तो कुछ तो ही बोल देती थी हमसे, सीएम से, डीजीपी से, तो वो बोले कि आपकी मैं मैसेज कहाँ की है, चंबल का पानी पिया है, तो वैसे खास चंबल की तो यही है. जो मिला वो सीबीआई जांच, इंक्वायरीज, कोर्ट में केसेस, खुद पुलिस वालों को 10-10 दिन भागना पड़ रहा है छोड़ के, ये सब देखा है हमने. What Yashmev was referring to were the various fake encounter allegations that were leveled against his father. Mr. Bhadoria was quite clear though that there was nothing fake about his encounters. मुद्दा ये था कि आपस में एनकाउंटर हुआ था, वह गैंग ने एक आदमी मार दिया, तो उसका चार्ज हमारे ऊपर लगाया कि हमने उसको मार दिया है, और कोई गैंग नहीं था, गांव वालों को मार दिया. तो उसके पीछे काफ़ी वो करना और सस्पेंड भी होना पड़ा, कोर्ट में केस लड़ना पड़ा, मर्डर का केस. तो उसमें बाद में फिर बरी हो गए, लेकिन ये काफ़ी चला. With our plates wiped clean off the main course, it was time for some gajak, a dry dessert made out of sesame seeds, groundnuts and jaggery. ODing on gajak, I got another invitation from my host. But this time, to something a little more dangerous than lunch with his family. There was a drill of a combing operation happening soon, and he wanted me to be a part of it. ड्रिल 1-2 दिन में होने वाली है, मतलब जैसी होती जैसे आपको हम ले चलेंगे. ड्रिल के दौरान कुछ भी हो सकता है. It's not safe. It's not safe. चलो अभी तो मैं मीठा खाता हूँ, बाद में देखेंगे. Well, this show won't really go anywhere if I started taking warnings seriously. So there I was, in a car with one of the best encounter specialists in the country, accompanying him on a potentially fatal drill. पहले जो डिडेड डॉकॉइट थे, वो तो वैसे कम हो गए हैं, बहुत रही नहीं है. एनकाउंटर मारे जा चुके हैं, लेकिन कुछ हैं गैंग अभी जो नए हुए हैं. तो आजकल यहाँ मूवमेंट चल रहा है, तो आपको वहीं ले चलते हैं हम, चिनौर थाना क्षेत्र में. चिनौर. When Mr. Bhadoria's network of informers tipped him off about the movements of a possible bandit gang 40 kilometers from Gwalior, near a village called Chinnor, the drill suddenly turned into a mini operation. We needed a bigger team, and Mr. Bhadoria decided to gather the rest of the group from the police station at Chinnor. सब फोर्स को फालन कर लो बाहर, है ना? An operation like the one which we were heading for involves smaller teams of policemen performing different functions such as searches, assault and ambush. विश्राम, आराम से.
अभी सूचना मिली है कि मऊच घाटी में गैंग आ गया है और गैंग की सूचना पे अपने को मऊच घाटी में चलना है और एक अपने साथ घुरल्ला पार्टी भी है साथ में, इसका भी ध्यान रखना है और इसके चेहरे देख लो इनके सबके। In addition to these parties, there's a special group whose job is to look, talk, and basically be like the bandits in order to infiltrate their ranks. This group is called the Guerrilla Party and is mostly composed of police informers and local villagers, and is the key to conducting a successful strike. ठीक है ना, अब मैं साहब को रिपोर्ट करता हूँ, उसके बाद अपना मार्च होगा चलने के लिए। As night dawned upon us and we started for the operation, I realized I was one of the few people here without a gun in my hand. If shit got serious, I'd have to completely rely on my host's weapon of choice. Fortunately for me, he and his gun go way back. ये कि 47 मेरी बहुत प्रिय है और मेरे उसमें हाथ पे जैसे लोग वाक बोलते हैं ना कि ये बंदूक बिल्कुल हाथ पे चढ़ी है। ये 96 से जब मैंने जो बड़े बड़े एनकाउंटर शुरू किए थे, बड़े ग्रेडेड गैंग हैं जो गडरिया हुआ, गुर्जर हुआ और हरी बाबा हुआ, ये सब वो सब इससे किए मैंने। तो करीबन मैंने ये तो 100 एनकाउंटर तो ये देख ही चुकी है। कुछ नाम वाम भी रखा है इसका नाम तो अब वो वैसा नाम है, कोई नहीं, बता दो। ये हमारी डार्लिंग कहते हैं इसको। क्या बात है, डार्लिंग। ये साथ में ही रहती है तो इसकी वजह से तो सब घर वाले भी नाराज रहते कि ये चिपकाए इसको घूमते रहते हो। बहुत बढ़िया नाम है, डार्लिंग। बाकी आपकी डार्लिंग है, आपकी जिंदगी बचाई है कितनी बार इसने। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि डार्लिंग ने कभी धोखा दिया हो? नहीं, इसने सबसे बड़ी बात तो इसकी यही है कि इस डार्लिंग ने कभी धोखा नहीं दिया। बहुत बढ़िया सर। और जब भी कभी फंसे मेरी गोली भी लगी थी उस समय भी इसी ने बचाया मुझे। क्या बात, क्या बात। लोग तो कहते हैं कि ये इसको बहुत आपने खून लगा दिया है, अब ये और कोई नहीं लेता डर के वजह से। अगर मैं रख भी देता हूँ ना वहाँ तो कोई ऑफिसर्स नहीं होता है कि बहुत खूनी है ये, तो उसने बहुत मारे। चलो बाहर निकलिए जल्दी जल्दी। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस जंगल में गैंग है और गैंग किसी भी गांव से अपहरण कर सकती है। जब तक आपको फायर का आदेश ना मिले तब तक कोई लोड राइफल को ना करके फायर ना करें, ठीक है ना। जब भी फायर का आदेश मिलेगा जब भी फायर होगा। Most people might be afraid of the dark, but night is when most encounter specialists go hunting for bandits. The bandits use their close ties with the local villagers to keep a track of police movements in the day. The lack of light in the night sort of levels out the playing field. गोरिल्ला पार्टी नीचे से भेज देते हैं। वीसी जी देखिए वो पूरी पहाड़ी है, उसको अपन को घेरना है और वहाँ सर्चिंग कराएंगे और यहाँ एम्बुश लगाएंगे। वहाँ से डकैत जो भी भागेगा वो यहीं से निकलेगा। ओके, तो यहीं अपन शूट करेंगे अगर होगा तो। अगर होगा तो चलो केदार अपनी पार्टी लेके एडवांस करो। आपको जैसे एक छोटी सी इंजरी हो गई थी जो वाइल एन एनकाउंटर, सो हाउ डू यू मैनेज टू वॉक सो मच डिस्पाइट दैट? उसमें इंजरी तो काफ़ी आ गई थी, करीबन 6 महीने में साल भर बिस्तर पे ही रहा। इसके बाद मैंने कहा मैं अब रेस्ट कर लूँ, अब नहीं करूँगा, लेकिन कोई अधिकारी नहीं माने और बीच में इन लोगों ने बड़ा आतंक मचा रखा तो मुझे फिर वापस वही काम करना पड़ा। फिर डकैतों की मारामारी के लिए चलना पड़ा। तो सर ये एम्बुश के लिए कितनी देर तक बैठा रहना पड़ेगा? अभी तो हो गए हमको 2-3 घंटे। हाँ, अभी क्या है कि सर्चिंग पार्टी जब तक वापस नहीं आ जाती है तब तक हमको थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। और पीछे गोरिल्ला पार्टी भी अपनी है जो बैठी है, उसमें गोरिल्ला पार्टी भी साथ में काम करती है और इसके साथ साथ यहाँ लोकल यहाँ का इन्फॉर्मर भी है। Behind every successful encounter specialist is a network of informers, and Mr. Bhadauria is no different. Dileep Singh, who is a part of the guerrilla party traveling with us, is one such informer who has helped Mr. Bhadauria get rid of various bandit gangs in the past. But it wasn't some sense of righteousness that fueled his rage against the Dakus, but the wish to take revenge for his brother's killings by the infamous Gadaria gang. भदौरिया साहब से तो वो पिरान सिंह नहीं मिलवा मेरी, फिर मैंने बाद में डकैत ने मार डालो पिरान सिंह, तो मैं साहब से जोड़ा। मैंने साहब मैंने ऐसी ऐसी बात में भैया तो ख़त्म कर दिया डकैतों ने। तो बोले तुम चिंता नहीं करे, तुम भी मुखबिरी के सालों की अपन मार देंगे डकैतों को। नहीं तो कभी आपको ऐसे ही लगा कि माफ़ कर देता हूँ? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि मेरा भाई मारा है याद, तो उसके चक्कर में तो। हाँ,
लग गया। मैंने कहा कुछ भी आ जाए इन्हें भी मरवाएंगे सालों, मेरा भाई मरवाया। After what seemed like forever, the search party came back empty-handed. So I wasn't going to be seeing any bandits tonight, dead or otherwise. By then, the adrenaline in my system had given way to absolute hunger. As it was too late to find a restaurant, Mr. Bhadoria decided to have dinner at a friend's farmhouse nearby. The friend was a Punjabi who'd settled here, and as soon as I stepped out of the car, it felt more like Gurdaspur than Gwalior. तो विशी जी कहाँ से आप? बम्बई से, ग्वालियर से? हाँ जी, बॉम्बे से। वेरी गुड, पंजाबी बंदे ये? Punjabi, full Punjabi. Before we could get started with dinner, I was reminded as to why Mr. Bhadoria is such a figure of influence in these parts. He isn't just a friend to farmers and landowners here, but at a lot of times, he's also been their only savior. साहब हमारे इलाके में गडरिया गैंग ने इतना आतंक मचा रखा था, शाम के टाइम बसों में जो है औरतों को लेके ग्वालियर से कोई जो है देहात में आना नहीं चाहता था। इन लोगों ने जो डकैत उन्मूलन के नाम से अभियान चलाया और उन लोगों को पकड़ा और उन लोगों को जो है मौत के घाट उतारा। यहाँ आर्थिक क्रांति आई क्षेत्र में उन लोगों का सफाया होने के बाद। नहीं, इसमें आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा। आप लोगों ने सब सहयोग किया। लाइए वही खाना लाइए। It was finally time for some food, and my host decided to give me a 101 about what was on my plate. ये इसको कहते हैं देसी मुर्गा। देसी मुर्गा है। इसको कहते हैं कड़कनाथ। ये जो बहुत जगह दुर्लभ है, शहरों में नहीं मिलता ये कड़कनाथ, ये देहातियों में यहीं पाया जाता है। और इसके साथ साथ भी आपको जो देसी ड्राई फ्रूट्स, गन्ने का रस और इलायची, लौंग इलायची, उससे बना हुआ एक पेय है ये। फिर इस पेय को बोलते क्या है? मृत संजीवनी सुरा बोलते हैं। अपने आदमियों के फोर्स के वाले गोली लग गई और उसको 2 बूंद डाल दी तो थोड़ा सा बैठ जाता है कि हाँ सांस आ जाते, हॉस्पिटल जाने तक के लिए उसको। With the food talk behind us, I finally decided to ask him what exactly went down in the jungles of Hastinapur on 16th November 2002. The same encounter where a bullet almost took his life. चांस एनकाउंटर था वो। हम लोग गैंग के पीछे थे और करीबन 30 किलोमीटर चलने के बाद जब हम पहुंचे स्पॉट पे तो इन्फॉर्मर ने बताया कि या तो इस घर में है, झोंपड़ी बनी थी, या इस खेत में है गैंग। कंफर्म नहीं था। तो हमने पूरा राउंड अप किया। इसके बाद उसमें देखा तो उसमें एक लेडीज़ दिखी, बच्ची दिखी। तो हमने कहा इनको कोई कैजुअल्टी ना हो जाए, तो उनको हम चले गए बाहर निकाल के लाए। उनको लाए तो डकैतों की नज़र में आ गए। वो घर में ही छुपे थे उसके। वैसे उन्होंने बट फायर शुरू कर दिया और उसमें पीछे से आके उसने एक ने वहाँ से गोली मारी तो हिट की। तो गोली लगी तो मुझे, लेकिन मुझे पता नहीं चला। मैंने जितेंद्र से पूछा, जितेंद्र तुम्हें गोली लग गई क्या? उसने बोला कि नहीं सर मुझे नहीं लगी। इतने में मेरा पैर लड़खड़ाया और मैं नीचे देखा तो गैंग वहाँ से शूट कर रहे थे। मैंने वहीं तुरंत AK-47 का बस्ट दिया तो 2 तो वहीं ढेर हो गए थे। तो वहाँ से कम 4 घंटे लग गए हॉस्पिटल पहुँचने में। तब जाके अगर थोड़ा ही लेट हो जाते, पल्स हमारी 30 और 35 रह गई थी पल्स। फिर तो मैंने सोचा अब तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं किसी को। जब मेरी गोली मार दी इनने, तो जब मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो पब्लिक की और समाज की क्या करूंगा मैं? तो मुझे बड़ा जोश आया उससे, तो मुझे और वो मिला कि वरना अब तो मैं नामो निशान मिटा दूंगा सबका। Recounting the 2002 encounter fired up Mr. Bhadoria, but it wasn't just our conversation that was getting heated up. ज़्यादा ही गर्म कर दिया यार। ज़्यादा अंदर बैठ जाए उसके। नहीं मना लो यार, लोहड़ी मना लो। ले आओ गजका, ले आओ मूंगफली ले आओ। तो सर ये जो डाकू डकैत होते हैं, जब आपने तो इतने मारे, जब वो मर रहे होते हैं, कुछ उनकी आखिरी ख्वाहिश भी होती होगी कि अलग अलग जगह अलग अलग ख्वाहिश थी। ये हमने हजरत गैंग से एनकाउंटर किया तो उसमें एक डकैत को गोली लग गई थी। उनका शूटर था मक्खन सिंह रावत। तो जब थोड़ा जिंदा था तो हमने कहा नहीं मत मारो, सबको रोक दिया। मैंने पूछा इसको चलिए हॉस्पिटल ले जाओ। बोले सर मेरी एक बात सुन लो, हॉस्पिटल मत ले जाओ मुझे, मैं तो मरने वाला हूँ। तो मैंने कहा तू आखिरी ख्वाहिश बता दे अपनी, आखिरी तेरी इच्छा क्या है, अगर हम पे हो सकेगा तो पूरी करेंगे। बोली मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मेरी मूछें ऊंची कर देना। जब फोटो छपे तो ये लगे मक्खन सिंह की मूछें ऊंची थी। तो मैंने कहा ठीक है, जल्दी जल्दी दो लोगों को बुलाया। मैंने कि उसकी मूछों में अंटर जल्दी से लगाओ, मक्खन फोटो, यस। बोला यस।
उसकी फोटो शूट की और इसके बाद वो लड़क गए। सर स्वीट डिश में क्या खिला रहे हो आप? स्वीट डिश में वैसे तो बहुत चीज़ें हैं यहाँ, लेकिन यहाँ की जो स्पेशलिटी है गाँव की वो है मलीदा। मलीदा बनता है कि गेहूं की रोटी हो, मक्का की रोटी हो, बाजरे की रोटी हो, उसको मैश करके उसमें घी डाल के उतना ही गुड़ मिला के इसको करके फिर आप खाइए। सूर्यास्त पंजाबी मस्त। तो यहाँ ये मलीदा खा लो तो रात में 12 बजे भी मस्त हो जाओगे। थोड़ा सा मलीदा रखिए, इनको टेस्ट कराइए कैसा ये करेंगे, है ना? है अभी बॉम्बे में मिलता है क्या? थोड़ा सा क्यों ही अलग है, फ्लेवर ही अलग है उधर। ये फ्लेवर अलग है, जहाँ हम किसी से नहीं, यहाँ हम कभी नहीं मिल सकता ना। So this is called Malida. There's somewhat like churi which you get in Punjab. It's very pure. Like the taste is like it transports you back to Punjab. It's like one of the purest things I've had in a while. It's perhaps better than the meal. Now, just as I was about to ask Mr. Bhadoria if he ever felt any remorse for all the encounter killings, this happened. It was a deja vu moment for me, as the same thing had happened in my conversation with the Dakus a few days back. It also made me realize how difficult it is sometimes to tell one side of the law from the other in Chambal. ऐसा लगा कुछ चहल पहल मची, कुछ बदमाश तो नहीं आ गए इसलिए फायर कर। बिल्कुल बिल्कुल चलता है। तो सर कभी आपको ऐसा ही लगा कि इतने सारे लोग मार दिए, तो बुरा ही लगा, कभी पश्चाताप टाइप नहीं हुआ? लगा एक बार लगा था। कब लगा था? रघुवर गढ़विया का इनकाउंटर हुआ था, तो उसमें से एक छोटा मोटा अपराधी था, हालांकि 2-4 केस थे उस पर, तो आ गया और जब फायरिंग हुई तो उसने भी फायर किए, तो वो भी मारा गया। तो मुझे बड़ा थोड़ा फील भी हुआ है। 3 केस थे उस पर, तो हमने कहा कि अब ठीक है, अब उनके साथ मेलजोल वाले, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो वो है गन्ने के साथ जो ढाड़ों भी पिस जाती है। ये हम लोगों के गाँव में कहावत चली, तो हमने कहा ठीक है। तो सर ये जो एनकाउंटर्स हैं, इनका कुछ ऑल्टरनेटिव है आज के डे एंड एज में कि एनकाउंटर ना किए जाएं और लोग ना मरे? आजकल के डकैत तो वो मीन मेंटेलिटी वाले हो गए। पहले तो हाई वाले रहते थे, तो महिलाओं को और उनके सम्मान करते, उनके पैर छूते थे, उनको पैसे दे देते थे कि आप हमारी बहन हो, आपसे हम नहीं बोलेंगे। लेकिन आजकल तो महिला दिखी नहीं कि किडनैप कर ले गए या फिर जो भी दुष्कर्म कर दिया, तो वो इनके लिए तो सज़ा ज़रूरी है। इनको ना कोई केस, ना कोई अदालत, ना कोई सुनवाई, सीधा वारंट, उनको सीधे जन्नत में गॉड के पास ही उनका न्याय वहीं होगा। When I first arrived in Chambal and decided to meet not just the bandits but their executioner as well, I was hoping to find 2 starkly different narratives. But as my time in Chambal was coming to an end, I was rapidly realizing that the chalk and cheese here are not that different. Morals, needs, actions, and their consequences. All of these are shifty and ever-changing in this unforgiving region. But if there was one constant in Chambal, then it most certainly was violence. So this was Chambal. If you want me to go to more such dangerous places and meet even more dangerous people, let me know. Let me know on our website, 101india.com. We are on Facebook, Twitter, and Instagram as well. Also, don't forget to subscribe on our YouTube channel. My name is Dr. VC. On to the next dinner with the Dons. 1 second. हाँ मम्मी, नहीं घर पे हूँ यार।